class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome to new session 2021 and 2022. This is your class 2 and I am your maths teacher from Ismailia Youth Service. We are going to start Ismailia Youth Service School, and I will give some instruction about online classes. Number 1, check your audio setting, use headphones for clear voice. Number 2, keep a notebook and pencil with you and note you down any difficult words or term you find during the class. Number 3, do your homework according to teacher instruction. Number 4, for copy work, listen your children teacher instruction carefully. Don't interrupt during the online class. Okay, today objectives: students should be able to identify the place value of 2 digits number. Number 2, write 2 digits number in words. And number 3, write the number in expanded form. Number 4, arrange the number in ascending order and descending order. Number 5, write predecessor and successor. Okay. Okay, students, I will give presentation of your copy. Copy and exercise book must be covered with transparent plastic sheets, and you will complete outer face sheet. In outer face sheet, you have to write name, class, section, roll number, subject, and school name like this. Okay, and you will complete inner face sheet, name, father name, class, section, roll number, subject, subject teacher name, and class teacher name like this. Okay. You will make title page first term 2021 and 2022. Okay students, और ये फर्स्ट टर्म का जो टाइटल पेज आपको बनाना है, ये बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है. ओके, टुडे माय टॉपिक इज चैप्टर 1, 2 digits number, 2 digit numbers. ओके, प्लेस वैल्यू, नंबर किस तरह से प्लेसमेंट होती है उनकी. ओके स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू. व्हाट इज प्लेस वैल्यू? In maths, every digit in a number has a place value. Place value can be defined as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number. Okay? जिस तरह नंबर्स की पोजीशन होती है उसको हम किस तरह से प्लेस करेंगे वो इसमें हम करते हैं प्लेस वैल्यू में. प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर on the basis of its position in the number. Okay students, oh this is cube. Hello, I am the ones. Please, I represent all the single digits numerals from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We are called ones because we only have one digit. ओके, 0 से 9 तक जितने भी नंबर होते हैं ये आप लोग जब काउंटिंग लिखते हो तो आपने देखा है ना कि हम इनके आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं लिखते. 0 भी अकेला होता है, 1 भी अकेला होता है, 2 भी अकेला होता है. तो ये जो सिंगल नंबर होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? वंस. ओके, ये वंस की प्लेस पे आते हैं. प्लेस वैल्यू में ये कहाँ पर आते हैं बेटा? 1 की प्लेस पे. ओके, we are called ones because we only have one digit. okay, इसको हम किससे शो करते हैं प्लेस वैल्यू में? क्यूब से. और क्यूब देखें, आपको देख के कैसे स्माइल कर रहा है कि आप अपना वर्क बहुत अच्छा करेंगे, तो ये भी हैप्पी हो जाएगा. ओके, देयर आर 10 सिंगल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, ये आपके पास टोटल 10 डिजिट्स हैं और जो सिंगल लिखे जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? वंस कहते हैं. ओके, 1 unit means 1 shown as we group 10 such blocks in a stack of 10 shown as with the help of these unit and tens we can represent large numbers than 9. We call it numbers in base 10 system. ओके, जैसे ही ये जो आपके पास मैंने दिखाया था आपको क्यूब था, क्यूब जैसे ही क्यूब्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे ही 10 क्यूब्स मिलेंगे वो क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा और वो 10 की प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, क्यूब शो
place ones and bar show place 10. Okay, मिस्टर टेंस एंड मिस वंस। जैसे मैंने आपको बताया कि वंस जो है वो किसको शो करते हैं, क्यूब्स को, और बार्स टेंस को। लार्जेस्ट वंस जो है वो क्या है, 9 की प्लेस है, 9 लार्जेस्ट वंस प्लेस है। तो जैसे ही हम 9 वी ऐड वन मोर, तो वो 10 में कन्वर्ट होता है, और फिर वो 10 में कन्वर्ट होकर किस तरह आ जाता है, बार बन जाता है। जैसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 10 क्यूब्स जब कंबाइन होंगे तो 10 क्यूब्स इज इक्वल्स टू 1 बार, और ये 1 बार किसको शो करेगा, मिस्टर 10 को। ओके, मिस वंस और मिस्टर टेंस। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट वंस एंड टेंस। इट मीन्स टू डिजिट्स नंबर, वी राइट टू डिजिट्स नंबर। ओके, तो फर्स्ट नंबर राइट in ones place, and second number writes in 10 place. Okay, let's do an example together. How many tens and ones are there? Type the number in the box. 34. It means 4 ones. 4 is a ones place and 3 is a 10 place. Tens, 3 tens means 3 tens. 1 10, 2 10 and 3 10. 3 tens and 4 ones. Okay. Example. Wow, this is a happy face. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we add one more, 10. 10 face combined together, it means 1 tenth. जैसे ही आपके पास टेंस वंस कंबाइन होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 में। एंड हाउ मेनी वंस, 1 2 3 4, 4 वंस। ओके, 1 10 and 4 ones. 1 10 and 4 ones. We will write 1 10 and 4 ones. Okay, this number is 14. 14. Okay, how many pencils, count with me, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and we add one more, 10. Okay, 10 10 1 10. Okay, again count with me, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 10 2 10. How many ones, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones, 2 tens and 8 ones. This number is called 28. Okay, इंट्रोडक्शन टू प्लेस वैल्यू वंस एंड 10। अब ये आपके पास यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, और ये आप गेम आप जो खेलते हैं उसमें क्यूब्स आपकी इस तरह की होती है ना फॉर्म। अब इन हम 14 को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे कि इन को हम किस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट we place a unit place, and second place 10 place. Okay, count with me, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tenth one is equal to 110. Okay, tens of the blocks put together form a rod. 10 1 is equals to 110, like this. 110, 10 के प्लेस पे से आपने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वंस जो थे वो 9 थे, वी एड वन मोर, दिस इज कॉल्ड 10, एंड 10 को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 10 के प्लेस पे। ओके, एंड रिमेनिंग स्क्वायर्स 1 2 3 4 we put in ones place. Okay, 1 2 3 4, 4 ones, 4 ones, 4 ones and 10 ones. 10 ones is equals to 110. Okay, 110 and 4 1 is equals to 14. 10 and 4 is equals, 10 plus 4 is equals to 14. 10 plus 4 is equals to 14. This number is called 14. 110 and 4 ones. Okay, look at the blocks, then fill in the empty boxes. Expanded form. अब आपके पास ये बार्स में गिवन है वैल्यू टेंसिल प्लेस एंड यूनिट प्लेस, और इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। यूनिट के प्लेस पे कितने आपके पास आ रहे हैं क्यूब्स, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स, एंड 1 2 3, 3 टेंस,
34. 3 tens and 4 units is equals to 3 tens means 30 and plus 4, 34. Okay. Any question? Dear students, any question? Do you understand place value of 2 digits number? Abdul Rafi, Abu Bakar, Rahmani, any question? टीचर ये सब कॉपी में करना है? अभी जो होमवर्क आपको किस तरह राइट करना है बेटा, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगी, ठीक है? अभी आपको ये प्लेस वैल्यू अंडरस्टैंड कर लिया आपने? एनी क्वेश्चन? टीचर ये सब क्या कंटिन्यू करना है? आपको प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपको नंबर की प्लेसमेंट करनी है प्लेस वैल्यू टीचर चार्ट में? क्या ये सब कंटिन्यू करना है? जी कंटिन्यू करना है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। टीचर जी टीचर मैं अपने भाई का ये एनी क्वेश्चन? उबैद टीचर सिद्दीकी, ये कॉपी में लिखना है। शहीद बुरहान, अबू बकर, एनी क्वेश्चन? कॉपी का वर्क मैं आपको अभी क्लियर करूंगी कि किस तरह करना है, ठीक है? अभी आप इस पे फोकस करें कि आपको ये क्लियर हो रहा है नहीं। टीचर एक कॉपी में करना है। ओके टीचर एक कॉपी में करना है। okay, what is predecessor number, predecessor and successor? Okay, to find the successor of a number, add 1 to the given number. To find the predecessor of a number, subtract 1 from the given number. Okay students, predecessor means number that comes before. It means 7147 नंबर दैट कम्स बिफोर, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है? इट मीन्स subtract 1 from the given number. Okay, and what is successor? Successor means numbers that come after, number that comes after 7148 के बाद कौन सा नंबर आता है? ओके तो जब आप इसको बाद के नंबर को फाइंड करोगे, टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर, add 1 to the given number. It means कि आपको 7148 में ऐड करना होगा नंबर 1, तो आपको जो नंबर आप गेट करोगे वो क्या होगा? सक्सेसर. ओके, सक्सेसर में हम क्या करते हैं? ऐड 1 to the given number, and predecessor में क्या करते हैं? subtract 1 from the given number. Okay, subtract 1 from the given number, predecessor, and successor means add 1 to the given number like this. Okay, 7148 माइनस फर्स्ट आपके पास नंबर जो है वो क्या है? 7147. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट किया, 7148 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको जो नंबर आपने गेट किया वो क्या हो गया? प्रेडिसेसर. ओके, और 7148 जो आपका क्वेश्चन नंबर था, जो नंबर था उसमें आपने 1 ऐड किया, तो आपको जो नंबर आपने गेट किया वो क्या है? सक्सेसर. ओके, इसी तरह इसकी अनदर एग्जांपल 8950. बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? 8949. टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर, ऐड 1 टू द गिवन नंबर टू अ सक्सेसर, and to find the predecessor of a number, subtract 1 from the given number. Okay, subtract 1 from the given number. आपने गिवन नंबर में से इसको माइनस कर दिया, तो ये आपके पास जो नंबर आपने गेट किया वो क्या है? प्रेडिसेसर. एंड 8950 टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर. ओके, subtract from 1, this is a predecessor, and 8950 to find the successor of a number, add 1 to the given number. Okay, ये आपके पास ये बेसिकली ये नंबर है 8950, इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको प्रेडिसेसर आपने गेट किया, और इसी में ही 1 ऐड कर दिया तो आपने जो नंबर गेट किया वो क्या है? सक्सेसर है. ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट, the ascending and descending order of a number, the ascending and descending order. Ascending order, a mathematical form of classification as number.
or measures are arranged according to an increasing order of comparison. The order can start anywhere and finish anywhere along the continuum of measurement. Okay, a mathematical form of classification as number or measures are arranged according to an increasing order of comparison. The order can start anywhere and finish anywhere along the continuum of measurement. Okay, this is called ascending order and descending order. What is descending order? A mathematical form of classification as number or measures are arranged according to a decreasing order of comparison. These numbers or measures may also begin and end at any point in the numerical order. Okay? A mathematical form of classification as number or measures are arranged according to a decreasing order of a comparison. These numbers or measures may also begin and end at any point in the numerical order. Okay, ascending order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and descending order 9, 8, 7, 6. It means असेंडिंग ऑर्डर क्या है कि हम जिस तरह नंबर्स में सीक्वेंस में चलते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे इसके नाम से ही आपको हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है इसमें वैल्यू, इसमें हम बैक जाते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबके? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर है सबके? Yes, students. Ascending and descending order clear है? Any question? उबैद सिद्दीकी, में से आपने जो सारा काम बताया वो कॉपी में करना है? बेटा अभी कॉपी में करने का काम मैं आपको एंड में बताऊंगी. अभी आप मुझे ये बताएं कि आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग वो भी कॉपी में करना है? कॉपी में करने का वर्क मैं आपको अभी बताऊंगी. पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है सक्सेसर एंड प्रेडिसर सबके क्लियर है? अयान रजा, उबैद सिद्दीकी असेंडिंग जी, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोबारा बना दे. अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ. अच्छा ये बताएं, ये सक्सेसर और प्रेडिसेसर है, ये आपको क्लियर है? ये क्लियर है आपको? जी बेटा, जी. सबके क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अयाज, रजा, इर्जा सबके क्लियर है? Okay, I will repeat. Successor and predecessor. हेलो. जी हेलो. जी जी बेटा. मिस पूछे जी. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? दोबारा बता दे. Okay, I will repeat. Okay, I will repeat. दोबारा बता रही हूँ. Okay बेटा. मेरा काम खत्म हो गया. Okay बेटा. I will repeat. समझ लिया. Predecessor number and successor. Okay. First. का काम कर लिया. असेंडिंग ऑर्डर वाला बता दे दोबारा से. ओके बेटा, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ. ओके, दोबारा रिपीट कर रही हूँ. Okay, what is predecessor and number and successor number? बंद नहीं है, बंद नहीं. Okay. To find the successor of a number, add 1 to the given number. Okay. To find the successor of a number, add 1 to the given number. It means कि जो आपके पास given number है उसमें हम add करेंगे जब number 1, तो जो आपको आप गेट करोगे वो क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा. सक्सेस मीन्स क्या होता है? आप कामयाबी होती है ना सक्सेस मीन्स. तो हम आगे की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो हम जैसे ही उसमें नंबर 1 ऐड करेंगे तो वो
हम क्या कर लेंगे, सक्सेसर गेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये नंबर है 7148, ठीक है, वी ऐड वन मोर, ओके, टू द गिवन नंबर एंड आई विल गेट सक्सेसर, ठीक। 7148 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7149, ओके। जैसे ये आपके पास बेसिक नंबर है 7148, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें हमने जैसे ही 1 ऐड किया तो हमने जो गेट किया नंबर 7149, दिस इज अ सक्सेसर, ठीक है। इसी तरह आप जब प्रेडिसेसर जब आप फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। अब हमारे पास गिवन नंबर क्या है, कौन बताएगा जल्दी से, 7148, ये हमारा गिवन नंबर था, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है प्रेडिसेसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, 7148 में से हम माइनस कर देंगे 1, ठीक है। तो आप जो गेट करोगे वो क्या होगा, प्रेडिसेसर, ठीक। एक और एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे आपके पास गिवन नंबर जो है वो क्या है, 8950, 8950, ठीक है। अब आपको गेट करना है सक्सेसर, तो आप कैसे करोगे, टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर ऐड 1 टू द गिवन नंबर, ऐड 1 टू द गिवन नंबर। 8950 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें जो हम गेट करेंगे वो क्या होगा, सक्सेसर होगा, ठीक है। इसी तरह हमें प्रेडिसेसर जब गेट करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 8950, दिस इज अ गिवन नंबर 8950। अब हमें इसमें से हमें प्रेडिसेसर निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, 8950 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या हासिल कर लोगे, प्रेडिसेसर, ठीक है। बेटा आप यू विल टेक स्क्रीनशॉट, ताकि जब आप ये क्वेश्चन करो तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। तो तमाम स्टूडेंट जो है इसके पिक्चर ले लें अपने पास, आपके मोबाइल में सेव होगा, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अनदर एग्जांपल, दिस इज अ गिवन नंबर 7620, ठीक। अब फर्स्ट फाइंड करना है प्रेडिसेसर, टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर आपके पास क्या है, 7620, तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इट मींस आपके पास जो नंबर हासिल हुआ वो 7619, दिस इज अ प्रेडिसेसर, ठीक। अब आपके पास गिवन नंबर क्या है, 7620, ठीक। टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर ऐड 1 टू द गिवन नंबर, हम 7620 में ऐड 1 कर देंगे, तो जो आपके पास आप जो नंबर गेट करोगे वो क्या होगा, सक्सेसर, ठीक है। 7620 plus 1 is equals to 7621, this is called successor of a given number, ठीक है। ओके, क्लियर है। and ascending and descending order, the ascending order and descending order. First I will explain ascending order. Ascending order, a mathematical form of classification as numbers or measures are arranged according to an increasing order. अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में ही क्लियर है ये, increasing order, it means के नंबर जो है वो increase होंगे of comparison. The order can start anywhere and finish anywhere along the continuum of measurement, ठीक है। आपके जो numbers हैं वो continue होंगे और increase करेंगे, this is called ascending order. And what is descending order? Okay, I will explain a descending order. A mathematical form of classification as number or measures are arranged according to a decreasing order. Okay, this is a डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर का वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स के नंबर्स जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इट मीन्स हम बैक होंगे। जैसे 8 के बाद 7 6 4, ठीक, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स नंबर्स डिक्रीज होंगे। Of comparison, these numbers or measures may also begin and end at any point in the numerical order. Okay. Ascending order. इसकी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि आप नंबर में क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मूव कर रहे हैं, कि नंबर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4। ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 के बाद जो है वो 1 आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 3 ऐड, मतलब नंबर्स इसमें आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जब इसी के अपोजिट आपके पास अनदर डेफिनेशन डिसेंडिंग ऑर्डर,
9 8 7 6। अब इसमें देखें हम क्या हो रहा है, हम बैक की तरफ जा रहे हैं। 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, इट मींस डिक्रीज फॉर्म में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो ये जो होगा आपके पास क्या होंगी, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, पुट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आप 18 35 5 21 13 22 40 अभी आपके पास डिसऑर्डर दिए हुए। Put the numbers in ascending order 18 35 5 21 13 22 40। ये आपके पास डिसऑर्डर नंबर दिए हुए, इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे 5 के बाद 13 है, 18 21 22 35 40। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं हम नंबर्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ओके, पुट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर 12 37 50। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बॉक्स में बंद नहीं है, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये आपके पास डिसऑर्डर है, ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब आगे पीछे नंबर लिखे हुए। आपको इसमें किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग, डिक्रीज होंगे नंबर्स। ठीक, तो डिक्रीजिंग आप किस तरह से, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा आपने, ठीक है, 50 37 31 29 17 12, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट स्मॉलर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबके स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्या एनी क्वेश्चन? आयशा, ये जो आपको मैंने वर्क दिया है, आपको ये वर्क जो है ये कॉपी पे नहीं करना है, बल्कि बुक के पेजेस मैं मेंशन करूंगी होमवर्क में, पेज नंबर 2 to 7। ठीक है, तो वो आपको बुक में आपके पेजेस हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी का आप टाइटल पेज वगैरह बना लेंगे। ठीक, और कॉपी का वर्क अभी आपको नहीं करना, अभी जस्ट आपको बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, और बहुत साफ सुथरा काम करना है सबको, बहुत। और अगर अभी भी आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, जैसे प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया, सबको प्लेस वैल्यू क्लियर है कि 2 डिजिट्स को हम किस तरह प्लेस करते हैं चार्ट में, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो 3 डिजिट्स नंबर पढ़ेंगे, तो आपको 2 डिजिट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। मिस जी बेटा, टीचर एनी क्वेश्चन? जी जी टीचर जी 2 से लेके 7 तक बुक बुक में काम करना है। जी, बुक में करना है। टीचर मुझे समझ में आ गया। समझ में आ गया सबके? बहुत अच्छी टीचर तरह। असेंडिंग और मुझे डिसेंडिंग भी ऑर्डर समझ की में काम डेफिनेशन करना बता है। दें टीचर। असेंडिंग एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर बुक की, में अच्छा काम ठीक है, मैं करना है। आपको दोबारा बता रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास हो वो। ठीक है, ठीक है बेटा। टीचर जी बेटा। टीचर बुक में लेट आया हूँ, मेरे को बुक में करना है। जी, सारा काम बुक में ये करना है। काम बुक में। जी बेटा, बुक में करना है, सबको बुक में करना है, सारा काम बुक में करना है आपको। ठीक है, मैं आपको बुक वाला वर्क फेयर कॉपी में करना है। फेयर कॉपी में, अभी टीचर पेज नंबर 2 कैसे करना है? अभी कॉपी में काम नहीं करना है, अभी कॉपी पे काम नहीं करना है बेटा, अभी कॉपी पे नहीं करना है, अभी आपको बुक के टीचर पेज नंबर 2 कैसे करना है? पेज नंबर 2 से 7 तक आपको कॉपी पे करना, बुक पे करना है। ठीक है, मैं अभी आपको मैं होम टास्क लेट सिखा आया रही हूँ, हूँ। मेरे को पीछे का दिखा दे। अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी स्लाइड्स कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, ओके, ठीक है, स्लाइड्स मूव कर दें, वो लेट आए ना, देख लेंगे, बंद कर दें। इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग की दे दे पहले पिक्चर। खत्म हो गई, पीछे से रिपीट करने का कह रहे हैं, कुछ स्लाइड्स रिपीट कर दो स्टार्ट से ना, यहाँ आगे से, वो अभी उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उसके बाद होम टास्क सिखा देना। एक साथ कर दो हल्के हल्के, बस यहीं से एक और स्टेप कर लो, यहीं से कर लो, बस यहीं से कर लो, आराम आराम से, आराम आराम से, टाइम है ना अभी। ओके, बोलो। ओके, अभी आप जिसने ज्वाइन किया है वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लो। ओके बेटा, ओके, फर्स्ट कंबाइन किया हम इसे टेंस,
Tens ones is equals to 110. Okay. Okay, beta. Identify the place value of 2 digits number. Write 2 digits number in words and write the number in expanded form. Okay. आगे बढ़ती जाओ, बढ़ो, यहाँ से बढ़ो. Okay, arrange the number in ascending order. अब आपको ये कॉपी का जो पेज है इसे कंप्लीट करना है. कॉपी का पेज कंप्लीट करने के बाद आप ये टॉपिक जो है ये दोबारा से क्लियर कर लें कि किस तरह से इसको हमें कंप्लीट करना था. फर्स्ट 10 ones is equals to 110. ठीक है, इस तरह से हम इसे कंबाइन करेंगे. Okay, 1 we will write 1 and 4 ones. Okay, this number is called 14. Okay, how many pencils? 10 ones is equals to 110 and 10 ones is equals to how many ones? 1 2 3 4 5 6 7 8 ones. 2 tens and 8 ones. This number called 28. Okay. This number is called 28 and कि आपके पास क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स मौजूद हैं, इनको काउंट करना है और प्लेस वैल्यू में पुट करना है. इंट्रोडक्शन टू प्लेस वैल्यू वंस एंड टेंस. तो फर्स्ट 1 की प्लेस पे हम जैसे ही एंड सेकंड प्लेस 10 प्लेस कंबाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tens ones is equal to 1 tens. We will shift 10 of the blocks put together form a rod. 10 ones is equal to 110. Okay, 110. We will shift 110. And how many ones? 1 2 3 4 4 ones. This number is called 14. 4 ones and 110. 110 and 4 ones is equals to 14. Okay, 10 plus 4 is equals to 14. 14. 110 and 4 ones is equals to 14. Look at the blocks, then fill in the empty box expanded form. ये आपकी बुक का पेज है और इसे आप एक स्टार कंप्लीट करेंगे. पहले आपको टेंस काउंट करना है और 10 की प्लेस पे राइट करना है. जैसे 3 टेंस एंड 4 वंस. यूनिट की प्लेस पे आपने 4 राइट किया एंड 10 की प्लेस पे 3 राइट किया. 3 टेंस मीन्स 30. क्यों? बिकॉज टेंस वंस इज इक्वल्स टू 110. ओके, तो 3 टेंस इज इक्वल्स टू 30. इसी तरह से आप इसे राइट करेंगे. हाउ मेनी टेंस? 1 2 3 4. 4 टेंस एंड हाउ मेनी वंस? 1 2 3 4 5. 4 5 45. 4 टेंस प्लस 5 वंस. इस तरह आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी कंप्लीट करेंगे. प्रेडिसर एंड सक्सेसर. प्रेडिसर, to find the successor of a number, add 1 to the given number. Given number 7148 plus 1. This is called successor. And given number is 7148. Subtract 1 from the given number and we will get 7147. This is called predecessors. Okay, the ascending and descending order. आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें जिसने आप मुझसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन मांगी थी, लेकिन इसे आप कॉपी पे राइट नहीं करना. ओके, अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अ क्लासिफिकेशन एज नंबर्स और मेजर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. कंपैरिजन द ऑर्डर कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड फिनिश एनीवेयर अलोंग द कंटिन्यूम ऑफ मेजरमेंट. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर होंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे. ओके, इसकी एग्जांपल ये थी. ascending order 1 2 3 4 5 6 7 8. This ascending order and descending order greatest to smallest means descending order. It means कि यहाँ पे हम डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग हो रही है वैल्यू, नीचे अप टू डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल थी जो मैंने आपको क्लियर की थी.
इसके बाद आपका होम टास्क है, होम टास्क डू पेज नंबर 2 to 7। आपको कॉपी वर्क नहीं करना, जस्ट बुक पे वर्क करना है, ठीक है। कॉपी वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डू बुक पेज नंबर 2 to 7, ये बुक का पेज है 2 to 7 जो आपको कंप्लीट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी वर्क आपको कॉपी पे नहीं करना, ओके, क्लियर है। तमाम वर्क आपको अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना है। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, सदीम खान, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर भी कॉपी पे नहीं करना है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है जो आपको बुक में कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये मैंने शेयर कर लिया है होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप आराम से कंप्लीट कर लो, ओके। तलहा गुल, शहीर बुरहान, सबके क्लियर है। पेज नंबर 7, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना है फॉर्म को, प्रेडिसर एंड सक्सेसर कंप्लीट करना है। सुभान, ओके। प्रेडिसर की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पेज नंबर 7 कंप्लीट करना है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, मोहम्मद तलहा यूसुफ, एंड आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग ऑफ माय लेसन। सबने बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया होगा। जी बेटा सुभान, पीछे का मैसेज देखो, पीछे का, नीचे का। पेज नंबर 7 में मैंने आपको बताया कि आपको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म करना है एंड प्रेडिसर सक्सेसर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है, जो मैंने आपको अभी इससे पहले स्लाइड दिखाई थी जिसमें प्रेडिसर एंड सक्सेसर था और एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसे आप बुक पे कंप्लीट करोगे। बुक में एक एग्जांपल सॉल्व हुई नहीं है, आप उसी को ही फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मंसूर अली क्लियर है आपके? सुभान बेटा आपको क्लियर हो गया कि आपका जो पेज नंबर 7 जिसके क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन, आपकी हर एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आप उसको जैसे ही करेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मोहम्मद आदम, फर्स्ट स्लाइड में बिस्मिल्लाह लिखी है टीचर ने, ओके। क्लास टीचर नेम आप जैसे ही स्कूल आते हैं तो आपको क्लास टीचर नेम पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखेंगे सब, अल्लाह हाफिज।